नमस्कार, मैं पत्रकार संदीप चौहान लेकर आया हूं इस हफ्ते की कुछ गर्मा गर्म ताजा तरीन खबरें जिन्हें जानना आपके लिए जरूरी है। तो अगर सो रहे हैं तो जाग जाएं और अगर जागे हुए हैं तो सतर्क हो जाएं, क्योंकि ये क्रिप्टो की बात कॉइनेक्स के साथ। न्यूज नंबर 1, क्रिप्टो लेऑफ्स जारी हैं। अब हाल ही में चल रहे टेक कंपनीज के लेऑफ्स के बारे में तो आपने सुना ही होगा, जिसके चलते हजारों लोगों की नौकरियां जा चुकी हैं। लेकिन ये मंजर क्रिप्टो इंडस्ट्री को भी घेरे हुए। क्रिप्टो इंडस्ट्री के बड़े बड़े नाम जैसे कि कॉइनबेस, ब्लॉकचेन.com और जेनेसिस ने भी अपने कई एम्प्लॉइज को टाटा बाय बाय कह दिया और अब पॉलीगॉन ने भी अपनी 20% ऑफ दी वर्कफोर्स को ले ऑफ कर दिया। अपनी ट्रेजरी में $250 मिलियन और 1.9 बिलियन मेट्रिक टोकन्स होने के बावजूद पॉलीगॉन ने अपने 100 एम्प्लॉइज को ले ऑफ करा है। अब इसके पीछे का रीजन पॉलीगॉन की अपनी सारी एंटिटीज को एक करना भी बताया जा रहा है। सारी एंटिटीज को मिलाकर अब पॉलीगॉन ने एक सिंगल यूनिट पॉलीगॉन लैब्स बना दी है। अब इन लेऑफ्स के कुछ दूसरे रीजंस हैं। बेयर मार्केट, क्रिप्टो बेयर मार्केट को अब लगभग साल भर होने को आया है, जिसके चलते कंपनीज का प्रॉफिट भी कम हो गया है और उनके लिए इस इंडस्ट्री में सस्टेन कर पाना थोड़ा मुश्किल हो रहा है। बड़े बड़े कोलैप्स, बड़ी बड़ी फर्म्स जैसे कि 3 Arrows कैपिटल और FTX के कोलैप्स ने भी मार्केट को कमजोर कर दिया है। बुल साइकिल में क्विक हायरिंग, बुल मार्केट के चलते 2021 में काफी सारी क्रिप्टो कंपनीज ने बूम हायरिंग करी थी, जिसकी वजह से उन्हें अभी कॉस्ट ज्यादा आ रहा है और बिजनेस ज्यादा ना होने की वजह से ये कॉस्ट भी पूरी नहीं हो पा रही है। न्यूज नंबर 2, इंडिया ने अभी तक अपनी G20 प्रेसिडेंसी की समरी दी। अब इंडिया ने अपनी G20 प्रेसिडेंसी की समरी और आउटकम डॉक्यूमेंट प्रेजेंट करा, जिसमें क्रिप्टो रेगुलेशन और टैक्सेशन रिलेटेड भी काफी कुछ था, जिसके लिए आप ये इंटरव्यूज देखें। Not to speak about it, but I'm glad to say one thing. There's almost a clear understanding that anything out of the central bank is not currency. And this is a position that India has been taking for a very long time. And we are glad that such a position of India is now getting also acknowledgement from so many different members. I wouldn't want to take more of your time reading the quotes which had been coming out today in the meetings. I'm just referring to several speakers, not just in today's meeting but also outside, who have been speaking about the risks of crypto assets outside, and there is a clarity that unless it is sovereign backed, it cannot be a currency, and as it is, that they have to be regulated. And many of them did come to me to say that the technology which governs all this, the distributed ledger technology, and in some nations the coins, the units, the Bitcoin and stable coin and so on, people recognize that the technology behind all this is very useful for fintech, and even that position is now being reiterated by many other countries. But Governor Das. Second point is that there is now wide recognition and acceptance of the fact that cryptocurrencies or crypto assets or crypto products, or by whatever name you call it, they involve several major risks to financial stability, to monetary systems, to cybersecurity issues, and to overall financial stability. As I mentioned, that they involve several risks and they need to be looked at. And going forward, the effort is to develop an international framework, an international architecture to deal with this problem of these crypto assets or products or whatever you call it. The IMF and the Financial Stability Board both are working on it. The IMF is working on a paper. The FSB has been dealing with this issue. FSB focuses more on regulatory aspects. So there will be a synthesis paper between the FSB, Financial Stability Board, and the IMF on this whole issue of crypto that will come up in the later part of this year, and they will form the basis for the future discussions to develop an international architecture. अब इसके साथ ही फाइनेंस मिनिस्टर श्री निर्मला सीतारमण ने क्रिप्टो और G20 रिलेटेड 3 इंपॉर्टेंट डेट्स के बारे में भी बताया। अप्रैल 2023 स्प्रिंग मीटिंग ऑफ वर्ल्ड बैंक एंड द IMF, जुलाई 2023 द FSB पेपर ऑन क्रिप्टो रेगुलेशन,
September 2023, the synthesis paper for global policy approach for crypto. News number 3, Spotify अपना टोकन इनेबल्ड प्लेलिस्ट टेस्ट कर रहा है. Spotify एक नया फीचर ट्राई आउट कर रहा है जिसके चलते यूजर्स अपने NFT वॉलेट्स को Spotify से कनेक्ट कर पाएंगे और उनके बेसिस पर उन्हें क्यूरेटेड प्लेलिस्ट मिलेगी. अभी सर्विसेज सिर्फ एंड्रॉइड यूजर्स के लिए ओपन है और वो भी कंट्रीज जैसे कि यूएस, यूके, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया और जर्मनी में. अब इस फीचर को Spotify नेक्स्ट 3 मंथ्स तक टेस्ट करेगा और देखेगा कि NFT और Web3 Spotify के लिए कितना यूजफुल हो रहा है. न्यूज नंबर 4, WazirX ने अपना NFT प्लेटफॉर्म बंद किया. इंडियन क्रिप्टो एक्सचेंज प्लेटफॉर्म WazirX, जिसने अपना NFT प्लेटफॉर्म जून 2021 में लॉन्च करा था, उन्होंने अब इसे बंद कर दिया. लेकिन इस प्लेटफॉर्म को बंद करने से पहले WazirX ने कोई भी ऑफिशियल स्टेटमेंट या अनाउंसमेंट नहीं करी थी. यूजर्स जो भी अपने NFT को एक्सेस करने प्लेटफॉर्म पर जा रहे थे, उन्हें एक मैसेज दिखाई दे रहा था. द WazirX NFT marketplace has been sunsetted. You can still trade your NFTs on OpenSea. अब इसके बाद WazirX ने ट्वीट करके इसके बारे में अपने यूजर्स को बताया. यूजर्स अभी भी अपनी NFTs को OpenSea प्लेटफॉर्म के थ्रू एक्सेस कर सकते हैं, लेकिन ऐसे ही बिना किसी प्रायर नोटिस या इन्फॉर्मेशन के सर्विसेज रोक देना सही है या फिर नहीं? व्हाट डू यू थिंक अबाउट दिस? लेट मी नो इन द कमेंट्स. ये थी इस हफ्ते की टॉप क्रिप्टो न्यूज. हम मिलेंगे अगले हफ्ते. तब तक के लिए इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें.